For our worship, let us read two portions from the scriptures. हमारी इबादत के वास्ते हम खुदा के कलाम में से 2 आयतें हम पढ़ेंगे। First, we turn to Psalm 145. पहली आयत हम देखेंगे मज़ामिर की किताब चैप्टर 145। Psalm 145, first 5 verses we shall read it responsively. पहली 5 आयतें हम बारी-बारी से पढ़ेंगे। I will extol thee, my God, O King. I will bless thy name forever and ever. मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल-आबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. And the second portion is from 1 Peter chapter 2. दूसरा हिस्सा हम देखेंगे पहला पत्रस बाब नंबर 2। 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस बाब नंबर 2। We read verses 8 to 12. 8 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 2, reading from 8 to 12 responsively. पहला पत्रस बाब नंबर 2 8 से लेकर 12 तक बारी-बारी से हम पढ़ेंगे। A stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient unto also they were appointed. लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। Which in time past were not a people, but now are the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, that maybe your good works which they shall behold glorify God in the day of visitation. Let us pray. दुआ करेंगे। Our living loving Father, है हमारे प्यारे अजीज आसमानी बाप, we thank you for this opportunity granted in your house this Lord's Day to worship thee. आज के खुदा के दिन में आपके घर में आकर आपकी इबादत करने का मौका जो आपने हमें दिया है, इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Thank you for enabling us to worship thee through songs. गानों के जरिए से आपकी इबादत करने का मौका देने के लिए शुक्र अदा करते हैं। For individual worship, we look unto you, expound the word unto us, so that we may be filled with the spirit of worship. इनफरादी इबादत के लिए हम आपकी राह तकते हैं कि आप आपके कलाम के जरिए से हमें आपका कलाम बख्शें और हमसे गुफ्तगू करें और इबादत के लिए हमें मुस्तैद रखें। Our worship may be acceptable unto thee. और हमारी इबादत आपके नजदीक मकबूल ठहरे। May the Holy Spirit help us in expounding the word. आपके पाक रूह के जरिए से आपके कलाम हमारे लिए आज शाम को खोलें और मुताला करें। In Jesus' precious name we pray. हमारे खुदावंद यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. We are blessed people because God has given opportunity to come to His house and worship Him. हम तो मुबारक लोग हैं क्योंकि खुदा ने हमें अपने घर में आकर अपना कलाम सुनने का मौका हमें दिया है। Yeah, our God is in the heavenly places, being worshipped by innumerable numbers of angels, cease not day and night. हमारा खुदा आसमानी मकामों में वो तख्तनशीन है और दिन रात वो फरिश्तों के जरिए से वो इबादत पाते रहता है। Yeah, he is a great God, heaven, and the heavens cannot contain him. वो तो आसमानी खुदा है और फलकुल अफलाक उसको फलकुल अफलाक में भी वो समा नहीं सकता। Yeah, he is the creator of the whole universe. वो तमाम कायनात का बनाने वाला है
वो पैदा करने वाला है। By the word of his mouth, he created everything which we see, we cannot see, which are in heaven and on the earth and the sea. आसमान में जो है, जमीन पर जो है, सब कुछ जो भी नुमुदार है, जो दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता, सब कुछ बनाने वाला वही है। We worship him for what he is. और जो हम उसकी इबादत करते हैं, वो कौन है ये बात समझकर उसकी इबादत करते हैं। We praise him, adore him, thank him for what he has done in our lives. हमारी जिंदगियों में उसने जो कुछ किया है, इसलिए उन बातों को याद करते हुए उसकी सिताइश और हम्द सना बजा लाते हैं। Yeah, in Psalm 145, the psalmist David says, I will extol thee, my God, O King, I will bless thy name forever and ever. और यहाँ पे साम्स चैप्टर 145 में दावीद बादशाह जो मज़ामिर नबी से यहाँ वो खुदा की हम्द सना बजा लाता है और तमजीद करते हुए ये गाना लिखता है। So he says, I will, verse 2, every day will I bless thee and I will praise the name forever and ever. और यहाँ पे आयत नंबर 2 में वो फरमाता है, मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। He understood the greatness of God and he realized what God has done in his life. उसने समझ लिया है कि खुदा की अजमत कितनी बड़ी है और खुदा ने अपनी जिंदगी में अपने लिए क्या क्या किया है उसने समझ लिया है। That's what filled with gratitude he says, I will bless the name forever and ever. इसीलिए शुक्रगुजारी से भरे हुए दिल से वो कहता है कि मैं अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। And he repeat the same thing in verse 2 also. और आयत नंबर 2 में वो फिर वही दोहराता है। So much that he is blessed by the God of heaven and he worshipped him with all gratitude. इस तरीके से क्योंकि आसमानी खुदा से वो बहुत मुबारक बना, इसीलिए तहे दिल से वो आसमानी खुदा यहोवा की सिताइश करता है। In verse 3 he says, आयत नंबर 3 में कहता है, Great is the Lord and greatly to be praised and his greatness is unsearchable. यहोवा बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। He says his greatness is unsearchable. वो कहता है कि उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। We cannot understand how great is our God. हम जान नहीं सकते कि हमारा खुदा कितना ही बुजुर्ग है। That's what he says, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. इसीलिए आयत नंबर 4 में वो कहता है कि एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। He does good things for his people. क्योंकि वो ऐसा खुदा है जो अपने लोगों के लिए, कौम के लिए बहुत बड़े अजाइब और गराइब करता है। He says in verse 5, I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. इसलिए 5वीं आयत में वो कहता है, मैं तेरी आजमत की जलाली शान पर और तेरे अजाइब पर गौर करूंगा। We cannot understand the greatness of our God. हमारे खुदा की अजमत को हम समझ नहीं पाएंगे। In verse 8 he says, the Lord is gracious, full of compassion, slow to anger and of great mercy. इसीलिए आयत नंबर 8 में वो कहता है, यहोवा रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। And he says in verse 9, the Lord is good to all and his tender mercies are over all his works. और आयत नंबर 9 में कहता है, यहोवा सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उनकी सारी मखलूक पर है। So the Lord is good to all. तो यहोवा सब पर मेहरबान है। Even to the evil also he is good. वो बदकिरदारों पर भी वो मेहरबानी दिखाता है। He shows his mercy that he may come to repentance. अपना फजल और रहम उन लोगों पर भी वो नाजिल फरमाता है ताकि वो लोग नजात तक पहुंचे। He is good in his ways, in all his deeds he is good. खुदा यहोवा जो है वो अपने सब कामों में, सब बातों में वो भला है, नेक है, मेहरबान है। So we have gathered here this morning, this day we have come here to praise him, worship him and thank him and adore him. इसीलिए आज शाम को हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम हमारे बुजुर्ग और अजीम खुदा यहोवा की इबादत करें, तमजीद करें। David enjoyed great blessings from God. दावीद बादशाह को अगर हम देखते हैं तो वो उसने अपनी जिंदगी में खुदा से बहुत बड़ी बरकतें हासिल की थी। He received the joy of the Lord in his heart. अपने दिल में उसने यहोवा से खुशी पाई है। He says, thou hast put gladness in my heart more than their corn and wine increased. वो कहता है, तूने मेरे दिल में
में इतनी खुशी भर दी है, उस खुशी से भी ज्यादा जो गैर कौमों के अनाज और माए से उनको मिलती है। Yeah, chapter 4, Psalm verse 7. मज़ामिर की किताब बाब नंबर 4 की आयत नंबर 7। Yeah. Thou hast put gladness in my heart more than in the time of their corn and their wine increased. तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ले और माए की फिरावानी से होती थी। Yeah, when do we get the joy unspeakable, full of glory? हमें बयान से बाहर लाजवाल खुशी कब मिली है? When our sins are forgiven. हमारे गुनाहों को जब खुदा ने मुआफी बख्शी। As a person, sins are forgiven and he received the great joy in his life. वो भी एक इंसान ऐसा है जो जिसने खुदा से गुनाहों की मुआफी हासिल की है और उसकी जिंदगी में खुशी भरी है। Yeah, Psalm 32 verse 5 he says, I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto thee, unto the Lord. Thou forgave us the iniquities of my sin. Selah. इसीलिए दाविद बादशाह 32वीं मज़ामिर नंबर 32 और आयत नंबर 5 में कहता है 32:5 में, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकिरदारी को ना छिपाया। मैंने कहा मैं यहोवा के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया। सिला। Having the God of heaven as his God. आसमान का खुदा जो है उसे दावीद बादशाह ने अपना खुदा बना लिया है। Full of joy in his heart. इसीलिए उसकी जिंदगी में उसके दिल में बहुत बड़ी खुशी भर गई है। God has raised him from sheepcote to the throne. खुदा ने उसे गल्लेबानी करने इंसान से उस हद से उस हालत से उसकी सरफराजी करके तख्त तक पहुंचाया। That God has raised him so much, all his enemies were subdued to him. खुदा ने उसे इतनी सरफराजी बख्शी कि उसके सारे के सारे दुश्मनों को उसके पैरों के तले खुदा ने कर दिया। He has become a victorious person in his life. इसीलिए दावीद बादशाह अपनी जिंदगी में एक फतहयाब इंसान बना था। Of course, there were failures, but God has been merciful towards him and reconciled, forgiven his sins. उसकी जिंदगी में तो बहुत सारी बार उसने गिरा, लेकिन फिर भी खुदा के पास आकर तौबा करने के बाद खुदा ने फिर से उसे मुआफ करके सरफराज किया और बहुत बड़ा शानदार बादशाह उसे बना दिया। Yeah, we have strong reason this evening to worship this great God because he has done great things for us. हमारे पास भी इस अजीम खुदा की इबादत करने के लिए आज शाम को कुछ वजह हैं, क्योंकि ये अजीम खुदा जो है हमारे वास्ते भी बहुत अजीम काम किए हैं। Yeah, in 1 Peter chapter 2 verse 9 we are told, but you are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation and a peculiar people. इसीलिए हम भी पढ़ते हैं पहले पत्रस की किताब में बाब नंबर 2 और आयत नंबर 9 में, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। Yeah, God has done great things for us. खुदा ने हमारे वास्ते बहुत बड़े अजीम और गरीब अजीम काम किए हैं। What we were, हम क्या थे? verse 10, आयत नंबर 10, which in time past were not people, but now the people of God, and which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। Yeah, we were not a people, हम तो खुदा के लोग ही नहीं थे, but now we are people of God. लेकिन अब हम खुदा के लोग बन चुके हैं। Yeah, we did not obtain mercy, but we obtained mercy. हम पर रहमत हुई नहीं थी, लेकिन अब खुदा की रहमत हम पर कसरत से हुई है। Yeah, because God is rich in mercy. क्योंकि हमारा खुदा यहोवा जो है वो शफकत और रहमत में गनी है। Yeah, with his great love he has loved us. अपनी बड़ी मोहब्बत से उसने हमसे मोहब्बत रखी है। Yeah, Lord Jesus Christ left all his glory, came to this earth, willingly went to the cross, suffered and died for our sins. खुदावंद यीशुआ अपना सारा जलाल छोड़कर इस जमीन में आकर यहाँ पैदा होकर हमारे गुनाहों के वास्ते मसलूब व मकतूल हुए और उसके बाद जी उठे। Yeah, verse 1 Peter chapter 2 verse 22. पहला पत्रस 2 की 22, Who did no sin, neither was guile found in his mouth.
ना उसने गुनाह किया और ना ही उसके मुंह से कोई मक्र की बात निकली। Verse 24. 24वीं आयत। Who is his own self bear our sins in his body and the tree, and we, being dead to sin, live unto righteousness, whose stripes you are healed. वो आप हमारे गुनाहों के अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। Who did no sin, no guile was found in his mouth. उसने गुनाह नहीं किया था और उसके मुंह से मक्र की बात नहीं निकली। Yet he was made a sin for us. लेकिन हमारे वास्ते उसे गुनाह कर दिया गया, करार किया Who गया। in his own self bear our sins in his own body. और उसने हमारे गुनाहों को अपने ही बदन पर ले लिया। Yeah, what a great love he has bestowed upon us. उसने हम पर कितनी ही बड़ी रहमत अता फरमाई है, जरा गौर फरमाए। Yeah, if our sins are not forgiven, and we will be judged and cast into the lake of fire. अगर हमारे गुनाहें मुआफ नहीं किए जाते तो हम पर अदालत होती और उसके बाद हम दोज़ख में चले जाते। But God, out of his mercy, sent his only one son, and no sin in him, was made sin for us. लेकिन खुदा ने हम पर ऐसे मोहब्बत की ताकि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे वास्ते बख्श दिया ताकि हम उसके जरिए से नजात पाएं। Yeah, so not only forgiven our sins, तो खुदा ने हमारे गुनाहों को मुआफ किया, इतना ही नहीं बल्कि but he has made us the peculiar people unto him. लेकिन खुदा ने हमें अपने लिए एक बरगुज़ीदा नस्ल ठहराया। Yeah, here we are told in chapter 2, 1 Peter verse 9, you are a chosen generation. यहाँ लिखा हुआ है पहले पत्रस 2:9 में कि हम बरगुज़ीदा नस्ल हैं। Yeah, we are a chosen generation. हम खुदा के लिए बरगुज़ीदा नस्ल हैं। God has chosen us. खुदा ने हमें चुना है। When did he choose us? खुदा ने हमें कब चुना था? When we were without goodness, without any goodness, God has chosen us. जब हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं थी, जब हम बरकिरदार ही थे, गुनहगार ही थे, तब खुदा ने हमें चुना। Yeah, when did he choose us? कब उसने हमें चुना? Before the foundations of this earth. इस जमीन और दुनिया की बुनियाद से पहले ही उसने हमें चुना। God has chosen Israelites in Abraham, and in Christ Jesus he has chosen we Gentiles. खुदा ने अब्राहम को चुना और खुदावंद यीशुआ में खुदा ने हम जैसे गैर कौमों को चुना। Yeah, so we are blessed people. We are called as chosen generation. इसीलिए हम मुबारक लोग बन चुके हैं और हमें बरगुज़ीदा नस्ल कहा गया है। We are without people, but now we are the people of God. हम इससे पहले पेशतर कोई कौम ही नहीं थे, लेकिन अब हम खुदा की कौम बन चुके हैं। Israelites are chosen to show forth the praises of God. खुदा ने इस्राएलियों को इसलिए चुना ताकि खुदा की खूबियां वो लोग जाहिर करें। Yeah, God has chosen us to show forth his praises to others. इसी तरीके से खुदा ने हमें भी इसलिए चुना ताकि हम भी खुदा की इस अजमत को, खूबियों को दूसरों के सामने इजहार करें, पेश करें। Isaiah chapter 43 verse 21. एशिया की किताब चैप्टर नंबर 43 और आयत नंबर 21। Isaiah 43 verse 21. एशिया की किताब चैप्टर 43 वर्स 21। These people have I formed for myself, they shall show forth my praise. मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। Yeah, these people I have chosen. इन लोगों को मैंने चुना। Yeah, so they show forth my praise. ताकि वो मेरी हमद करें। We are also called to show forth his praises. हमें भी खुदा ने इसलिए बुलाया ताकि हम उसकी हमद करें। Yeah, we are chosen generation. हम बरगुज़ीदा नस्ल हैं। Yeah, secondly, we are the royal priesthood. दूसरी बात यह है कि हम शाही काहिनों का फिरका, Royal priesthood. शाही काहिनों का फिरका बने हैं। Yeah, serving the God of heaven is assigned to the children of Levi. आसमान के खुदा की इबादत करने का मौका पुराने अहदनामा में बनी लेवी को दिया गया था। Yeah, God sent Jesus Christ, and who is greater than Levi in the line of Melchizedek. He has made every one of us who believed in him and given us the
priesthood ministry. लेकिन बाद में खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को भेजा जो बनी लेवी या लेवी के नस्ल से भी बढ़कर वो मिल्की सदक के ऑर्डर में वो बादशाह काहिन बना और इस तरीके से हम हमारे खुदाबंद यीशुआ की इबादत करते हैं। Yeah, so Jesus Christ was born in the tribe of Judah. खुदावंद यीशुआ को अगर हम देखेंगे तो वो यहूदा के कबीले में पैदा हुए। Yeah, it's nothing mentioned about Jesus Christ, the high priest. खुदावंद यीशुआ के बारे में सरदार काहिन करके ऐसा नहीं बताया गया। Yeah, but he is in the order of Melchizedek. लेकिन खुदावंद यीशुआ मिल्की सदक के ऑर्डर में से हैं। So he became the high priest. इस तरीके से वो सरदार काहिन बन चुके हैं। And we are all believed in Jesus Christ. We are all kings and priests under him. इस तरीके से खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाने के वजह से हम सब भी खुदावंद यीशुआ जैसे काहिन बन चुके हैं। So Jesus Christ is our high priest and we are also with him as a priest. इस तरीके से हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे सरदार काहिन बने हैं और हम भी खुदावंद यीशुआ में शामिल शुमार होकर काहिन बन चुके हैं। Yeah, that we can read in the book of Hebrews chapter 7. हम इस बात को इब्रानियों की किताब बाब नंबर 7 में पढ़ सकते हैं। Yeah, we are not going to read it now, right now. अब हम उसे पढ़ने वाले नहीं हैं। So he has made us the royal priesthood. इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें खुदा ने शाही काहिनों का फिरका ठहराया है। Jesus Christ is our high priest and we are with him as a priesthood. खुदावंद यीशुआ हमारे सरदार काहिन हैं और हम खुदावंद यीशुआ में शामिल शुमार होकर काहिन या काहिन बन चुके हैं। Yeah, now thirdly, God has made us the holy nation. तीसरी बात, खुदा ने हमें मुकद्दस कौम ठहराया है। Yeah, we are not ordinary people. हम कोई आम लोग नहीं हैं। We are the people received forgiveness of sin. हम वो लोग हैं जिन्होंने खुदा से गुनाहों की मुआफी हासिल की है। Through the blood of Jesus Christ, our sins are forgiven. खुदावंद यीशुआ की बदौलत हमारे सारे गुनाहों की मुआफी हमें हासिल हुई है। Every time, through the word, by the Spirit of God, efficacy of the blood, we are getting cleansed. हर वक्त हर बार बार खुदावंद यीशुआ के खून का वास्ता देकर खुदावंद यीशुआ के खून की बदौलत हमें गुनाह से मुआफी हासिल हो रही है। Yeah, we are made holy time and again. बार बार हमें पाक और नेक और मुकद्दस ठहराए जाते हैं। Yeah, we are getting out of the defiled world and brought unto the house of God. We are purged day by day. इस गुनाह से भरी हुई दुनिया से अलग किए जाते हैं और खुदा के घर में हम मखसूस किए जाते हैं। इस तरीके से दुनिया से हम अलग बनते हैं। That's what we are, the holy nation. इसीलिए हमें मुकद्दस कौम कहा गया। The holy God has chosen us by the precious blood of his dear son and made us holy as a kingdom for him. खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ में हमें चुना और हमें बरगुज़ीदा ठहराया और हमें मुकद्दस कौम बनाया। Yeah, then fourthly, और चौथी बात, we are the peculiar people. और हम खास मिल्कियत हैं। Yeah, we are different from others. दूसरों से हम अलग किए गए हैं। What others they do, we cannot do it. दूसरे जो करते हैं उस तरह के काम हम नहीं कर सकते हैं। Because we are separated from the world. क्योंकि खुदा ने हमें दुनिया से अलग कर दिया है। God has chosen us unto himself. खुदा ने हमें अपने लिए चुना है। We are living on this earth for that glory, that kingdom. हम इस दुनिया में तो जिंदगी गुजारते हैं लेकिन आसमानी जलाल और आसमानी बादशाहत के वास्ते मुंतजिर होकर जीते हैं। Our citizenship is in heaven. क्योंकि हमारा सिटीजनशिप जो है वो आसमान पर है। We are living on this earth for that kingdom. उस आसमानी मुल्क के वास्ते, आसमानी बादशाहत के वास्ते मुंतजिर होकर इस दुनिया में जीते हैं। That's what we are, peculiar people. इसीलिए हमें खुदा का कलाम कहता है कि हम खास मिल्कियत हैं। Those who truly walk according to the word of God, they are entirely different from others. जो खुदा के कलाम के मुताबिक ही चलते हैं वो बाकी लोगों से बाज रहते हैं। Yeah, what a wonderful blessing. कितनी बड़ी अजीम बरकत है ना। Once we were in this world, dead in sins and trespasses. हम तो इससे पहले इस दुनिया में रहते थे, गुनाह से और खता से मुर्दा रहते थे। Yeah, we did what others they did. दूसरे लोग इस दुनिया के जो भी करते थे हम भी कर रहते थे।
We were children of wrath. हम गजब के फर्जंद होकर जीते थे, Things are changed. लेकिन अब हालात बदल गई हैं। Yeah, book of Ephesians chapter 2 एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 and verse 3. और आयत नंबर 3। Among whom we are also all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh of the mind, whereby nature, children of wrath, even as others. इनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। Now things are changed. लेकिन अब हालात बदल गई हैं। Why? क्यों? Because we believed in Jesus Christ. क्योंकि हम खुदावंद यीशुआ पे ईमान लाए हैं। The finished work of Christ on the cross. खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर जो काम मुकम्मल किया उस पर ईमान लाए हैं। He has made us righteous. इसीलिए खुदावंद यीशुआ में हम रास्तबाज खुदा की नजर निगाह में ठहरे हैं। The Holy Spirit is working on us. रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में वो काम कर रहा है। We are made entirely different people in this world. इस दुनिया में हमें खुदा ने खास लोग ठहराया है। So we must be thankful to God and praise Him and worship Him. इसीलिए हमें खुदा के करीब आकर उसकी हम्दो सना गाकर हम्दो सिताइश गाना जरूरी है। So how David he says, I praise Him every day, and so also we must praise Him and worship Him all time. इसीलिए जैसे दावीद बादशाह कहता है कि मैं हर दिन यहोवा की सिताइश करूंगा, हमें भी उसके करीब आकर आज के दिन उसकी सिताइश करनी है। So this evening we worship our God for what He has done in our life. तो इसी वास्ते आज के शाम हम खुदा की इबादत करेंगे उन बातों को याद करते हुए जो उसने हमारे वास्ते किया है। We were in time past, we were not the people. इससे पहले हम खुदा के लिए कुछ उम्मत ही नहीं थे, Now people of God. लेकिन अब हम खुदा के लोग बन चुके हैं। Life has been changed. हमारी जिंदगी बदल चुकी है। So now we received mercy. अब हम फजल पा चुके हैं। We are entirely different people. हम बाकी लोगों से अलग हो चुके हैं। So let us praise Him and worship Him. इसीलिए हम उसकी हम्दो सिताइश गाएंगे। So when we worship, we remember these verses. तो जब हम इबादत में जाएंगे तो इन आयतों को हम याद फरमाएंगे। Lord, you have made me a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, and a peculiar people. ऐ मेरे आसमानी बाप, आपने मुझे बरगुज़ीदा नस्ल ठहराया, शाही काहिनों का फिरका ठहराया, मुकद्दस कौम बनाया और मुझे खास मिल्कियत बनाई। Lord, you have made me to show forth thy praises. और आपकी हम्दो सिताइश करने वाले कौम बनाए। वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल ब्लेसिंग यू हैव गिवन टू मी। आप मुझे कितनी अजीम बरकत और कितनी अजीम नेमत मुझ पर नाजिल की है। What shall I render unto thee? तो इन सबों के लिए मैं आपको क्या वापस दूं? I take the cup of salvation मैं नजात का प्याला उठाऊंगा and fall prostrate before thy throne of grace. और आपके फजल के तख्त के सामने मैं गिर पड़ूंगा। With these few thoughts we go to worship. तो इन चंद आयतों को याद करते हुए ख्यालात से हम हमारे खुदा की इबादत में शामिल होंगे।